Thank the Lord once again that we could come together. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि हम इस रीति से उसकी आराधना करने आ सकते हैं, Worship God. प्रभु की उपासना करें। Amen. आमेन। Thank God for times and opportunities. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं प्रियो ऐसे समयों और मौकों के लिए And God gives to us to worship Him in spirit and truth. जो परमेश्वर उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई में करने के लिए हमें देता The है, Father seeks those who worship Him in spirit and truth. क्योंकि पिता यीशु को ढूंढता है जो उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। We know that sometimes we feel bound और कभी in कभी situations ऐसा होता है, हम परिस्थितियों के द्वारा हम बंधे हुए होते हैं, and break it up with praise and worship to God. लेकिन आज उसे तोड़कर परमेश्वर की आजादी से आराधना करें। God said, परमेश्वर ने कहा है, let my people go. मेरे लोगों को जाने दे They might worship me. ताकि वो मेरी उपासना कर सकें। Amen. Amen. Sing that song. God said, set my people free. उस And गीत let को them हम go. गाएंगे। परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दे। God said, set my people free and let them go. God said, set my people free and let them go. God said, set my people free and let them go into the promised land. God has given a land of good things, and I will press in and they be mine. I know His power, I know His glory, and in His kingdom I will shine. Gird up your armor, ye sons of Zion, gird up your armor, let's go to war. We'll win this battle with great rejoicing, and so we'll praise Him more and more. Oh, with the high praises of God in our mouth and the two-edged sword in our hand, we will march right on to the victory side, right into Canaan's land. Praise ye the Lord always, praise ye the Lord always, praise ye the Lord with all your heart, praise ye the Lord with all your heart always. Yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. Yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। यीशु नल्लावन, यीशु नल्लावन, यीशु नल्लावन यानी के। Praise ye the Lord always, praise ye the Lord always, praise ye the Lord with all your heart, praise ye the Lord with all your heart always. Hallelujah. Amen. Amen. आमेन। He is the Lord, He reigns on high. वो परमेश्वर है और ऊंचे पर विराजमान है। We forget हम इस बात को भूल जाते हैं God is on the throne. कि हमारा परमेश्वर सिंहासन पर है He is not moved with things which happen. और वो उन घटनाओं से जो दुनिया में होती है वो विचलित नहीं हो जाता है। He knows उसे पता है His purposes will come to pass. उसके जो उद्देश्य हैं वो सब पूरे होंगे। That's why we pray. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, Let your kingdom come. प्रभु तेरा राज जाए। Hallelujah. हालेलुया। He is the Lord. He reigns on high. He is the Lord. Spoke into darkness, created the light. He is the Lord. Who is like unto Him, never ending in days.
He is the Lord. And He comes in power when we call on His name. He is the Lord. Show your power, oh Lord our God. Show your power, oh Lord our God. Show your power, oh Lord our God, our God. Your gospel, oh Lord, is the hope of our nation. You are the Lord. It's the power of God for our salvation. You are our Lord. We ask not for riches, but look to the cross. You are our Lord. And for our inheritance gave us the lost. You are the Lord. Send your power, oh Lord our God. Send your power, oh Lord our God. Send your power, oh Lord our God, our God. Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा है, freely you received, तुमने सेत में पाया है, freely give. वैसे ही सेत में यानी मुफ्त में दो। So many times we withhold कितने ही बार हम उसे अपने तक रख लेते हैं when we have opportunities to share. जब हमारे पास में प्रभु के सुसमाचार को बांटने का मौका होता है। Friends, let's not lose our opportunities. हम कई बार अपने उन मौकों को खो देते हैं। Hallelujah. But share it with people. प्रियों से लोगों के संग बांटे ना खोएं। He said, freely, freely you have received. Freely, freely give. God forgive my sins in Jesus' name. I've been born again in Jesus' name. And in Jesus' name I come to you to share your love as He told me to. He said, freely, freely you have received. Freely, freely give. Go in my name, and because you believe, others will know that I live. प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। संकट में वो साथ रहेगा, मित्र है सच्चा वही। हाँ, संकट में वो साथ रहेगा, मित्र है सच्चा वही। दुख में भी वो ही संभाले, जब कोई काम ना
कोई काम न आवे, यीशु ही मुझको सुहावे, यीशु ही मुझको सुहावे, जब कोई काम न आवे। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। उसके प्रेम का मैं पुजारी, भक्ति है सच्ची यही। उसके प्रेम का मैं पुजारी, भक्ति है सच्ची यही। क्रूस का प्रेम लुभावे, जग अब मुझे न भावे। क्रूस का प्रेम लुभावे, जग अब मुझे न भावे। यीशु मैं उसके चलूंगा, पीछे मैं उसके चलूंगा। बेड़ा पार लगाए, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। Lord, this is our prayer to you. प्रभु आज के दिन हमारी प्रार्थना आपसे यही है, Fill our cups with your Holy Spirit power. हमारे इस जीवन के बत्तियों में पवित्र आत्मा के तेल से भर दे। Lord, we remember परमेश्वर हम स्मरण करते, the disciples got filled again and again and again. वो तेरे चेले जो बार बार और बार बार तेरी आत्मा से भरते चले गए। Give us that hunger and that thirst, O Lord, प्रभु हमारे अंदर वो भूख और वो प्यास को दे, to receive from you what you have for us. जो तूने हमारे लिए रखा उसको ग्रहण करने के लिए। प्रभु Bless us, O God. परमेश्वर तू हमें आशीष देना, Anoint us with your Spirit. अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक हम में कर दे। Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य दे। प्रभु Revive us one more time. एक बार फिर से हमें सरगर्म कर दे। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। Shall we turn to Luke's Gospel? आइए हम लूका रचित सुसमाचार खोलें, 6th chapter. 6वां अध्याय, It's a very, very familiar portion. और उसका बड़ा ही चिरपरिचित भाग है लूका 6। We are reading from verse 47. और 47 आयत से हम इसे पढ़ लेंगे। These are the words of Jesus Christ. ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के हैं। And Jesus says like this. और यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार से बोल रहे हैं। If we read verse 46, he says like this. 46 आयत यदि आप पढ़ें तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ ऐसा कहा, And why calling me Lord, Lord? Do not the things which I say. जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? Whosoever cometh to me and heareth my saying and doeth them, I will show you whom he is like. जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। He is like a man which built an house and dig deep
and laid the foundation on a rock. And when the floods arose and the streams beat vehemently upon that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था. But he that heareth and doeth not is like a man that without foundation built an house upon the earth, against which the streams did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया. जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया. Very simple words Jesus is making us understand. बहुत ही सरल शब्दों में यीशु मसीह समझा रहे हैं. Any fool will understand. ऐसे शब्द जिसे एक मूर्ख भी समझ ले. Something which is so common. ऐसी चीज जो इतनी सामान्य है. Something which people see every day. ऐसी चीज जिसे लोग रोज देखते हैं. And some और कुछ do the job. काम को करते हैं. So he's talking about an house. यहां पर वो एक घर के बारे में बोल रहा है. See, each one of us is doing something which are building ourselves. देखिए, हम में से हर एक जन कोई ना कोई काम कर रहा है जिससे हम अपने आप का निर्माण करते हैं. Our lives अपनी जिंदगी का निर्माण in this world इस दुनिया के अंदर, and our spiritual lives. और हमारी आत्मिक जीवन का भी निर्माण. And Jesus is saying here, और यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, you call me Lord, Lord, तुम मुझे हे प्रभु बोलते हो, but you don't do the things that I say to you. परंतु जो बातें मैं तुमसे कहता उसे मानते नहीं. In the last day also the same cry will be from many people. अंत के दिनों में भी ऐसी ही पुकार बहुत से लोगों की तरफ से होगा. Jesus said, not all those who say Lord, Lord यीशु मसीह ने कहा, हर एक लोग जो मुझे हे प्रभु कहते हैं will not enter the kingdom of heaven, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, but they परंतु वे करेंगे who do the will of my Father. जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करते हैं. And what saying Jesus made then और यीशु मसीह ने जो बात उस समय कही and what he's making it now और यहाँ पर वो जो बात कह रहे हैं have the same meaning. उसका अर्थ वही है. Now Jesus is saying, अब यीशु कह रहे, he who listens to my words जो कोई मेरे वचन को मानता है, सुनता है and does it, और वैसा ही करता है, so he likens him to be to a wise man. वो ऐसे व्यक्ति की तुलना एक बुद्धिमान के साथ करता है. And he said, और उसने कहा, wise man thought to build his house. बुद्धिमान व्यक्ति ने सोचा मैं घर बनाऊंगा. And it says here, यहाँ लिखा है, he dug deep उसने भूमि गहरी खोदा and laid the foundation on a rock. और चट्टान पर नींव डाली. You see, today we need to know what kind of foundation we have. आज के दिन हमें ये बात समझना है कि हमारी नींव किस प्रकार की है. If the foundation is weak, the house is going to fall. यदि नींव कमजोर है तो घर एक ना एक दिन गिर जाएगा. So it can look beautiful from outside. बाहर से संभव है वो अच्छा दिखता हो. This man did some work to build his house. इस आदमी ने घर बनाने के पहले कुछ काम को किया. So you give it on contract to your contractors. आप ठेकेदार को ठेके में घर बनाने का काम देते, And instead of going 5 feet deep, he goes only 3 feet, 2 feet. 5 फीट गहरे जाने के बजाय वो 2 या 3 फीट ही गहरा खोदता. And you don't know it. और आप इस बात को नहीं जानते. One thing is there, एक बात वहां है, foundations are not seen. नींव ऐसी चीज होती जो रोज दिखाई नहीं देती. It is the load bearing place. वो एक ऐसी जगह है जो पूरे भार को उठाती है. Only the foundations which are seen is in the New Jerusalem.
एकमात्र जो नींव दिखाई देती है वो नए यरूशलेम की है, And in all the 12 names of the 12 apostles are written. जिसमें 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं And all beautiful stones the foundation is made of. और खूबसूरत पत्थरों से वो नए यरूशलेम की नींव डाली गई है। The Bible talks much about foundation. बाइबल बहुत बात करती है आधार या नींव के बारे When you में। talk of foundation, it is the underlying base or support. जब आप नींव की बात करते तो वो जमीन के अंदर दबी हुई एक सहारा, एक वजन ढोने वाली चीज है, A body or ground upon which something is built or overlaid. एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा चीज जिसके ऊपर घर का भार डाला जाता है। We know today with all these constructions going around us, आज के दिन हम चारों तरफ निर्माण कार्य देखकर इस बात को जानते हैं any strong building must have a strong foundation. कि किसी भी मजबूत इमारत को मजबूत नींव होना बेहद जरूरी है। With increase of technology, तकनीकी के विकास के साथ साथ, civil engineering, सिविल इंजीनियरिंग के विकास के साथ it has helped the construction workers. आज लोगों को काफी मदद मिली है, निर्माणकर्ताओं A को lot of research has been done. बहुत इस पे अनुसंधान किया गया People है। have accumulated knowledge. लोगों ने बहुत नए नए ज्ञान अर्जित किए They हैं। have got different kind of foundations today. आज के समय में अलग अलग किस्म की नींव बनाने के भी तरीके हैं। They know the foundation must bear the load of the building. उनको ये बात मालूम है कि पूरी इमारत का भार इस नींव को उठाने योग्य होना है। The different locations of the weight which is going to come, they know where it should come upon. अलग अलग तरफ का भार अलग अलग कोने में पड़ेगा, इस बात को वो हिसाब में लेते There's हैं। such a lot of study इतना अधिक इस पे अध्ययन होता है because for different buildings, different kind of foundation. अलग किस्म की इमारत तो उसकी नींव भी अलग। Single story buildings, single story foundation. एक मंजिला यदि इमारत है उसकी नींव उसके अनुसार होगा। Skyscraper has got different type of वो foundation. बहुमंजिला इमारत के लिए नींव भी कुछ उसी प्रकार की होगी। For over bridges, different kind of foundation. ओवर ब्रिज जो पुल बनते हैं उसके लिए नींव अलग होती है। Bridges going on through the river has got different foundation. नदी के नीचे से चलने वाले रास्ते का नींव अलग किस्म का है, We call it what do you call it? Piling foundation. जिसे पाइलिंग फाउंडेशन बोलते They हैं। make circle like this and put on those iron structures. और गोल बनाकर उस पे लोहे के ढांचे बिठा देते हैं। There is other foundations also. और भी तरह तरह के नींव लोग रखते हैं, What we call them column foundation. जिसे कोई कॉलम फाउंडेशन नींव भी बोलता है। So all those things are there. ये सब अलग अलग हैं। But in olden days, परंतु पुराने जो समय थे it was open foundation. वो ओपन फाउंडेशन हुआ करता था। Meaning, मतलब dig deep, बहुत गहरा चारों ओर find the खोदते, rock, चट्टान ढूंढते and then bring big blocks of stone. और बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आते And they would place it over there. और पत्थरों के ऊपर पत्थर बिठाते जाते। What I heard some time back, कुछ समय पहले मैंने ये सुना that in olden days they would leave the foundation for a few years. कि वो कुछ समय के लिए पुराने प्राचीन समय में वो नींव को यूं ही बनाकर छोड़ देते थे, So that how much it wants to sink, it might sink. ताकि जितना वो बैठना चाहे उतना चट्टान पे तरीके से बैठ जाए। Old time buildings are still standing. इसलिए पुराने समय की इमारत आज भी खड़ी दिखती हैं। We say we have technology, हम कहते तो है हमारे पास नई तकनीकें हैं, but they had something else. उनके पास कुछ और था। Old forts are still standing. पुराने पुराने राजाओं के गढ़ आज भी खड़े हैं। Hundreds of years have passed. सैकड़ों साल उन पर बीत चुका There is है not a crack in the foundation. और उनके नींव से कहीं पर भी एक जगह तड़का नहीं है। Our country is full of them. हमारे देश में ऐसे प्राचीन इमारतें बहुत हैं। Some forts are made in between a lake. कुछ गढ़ों को उन्होंने बड़े झील के बीच में बनाया है। You go to Jaipur, you'll find. जयपुर आप यदि जाएं ऐसे आपको गढ़ मिलेंगे, And in that fort, और उस गढ़ में there is no seepage. वहां पर कोई पानी का रिसाव नहीं है, It is inside the lake. और जबकि वो पानी के बीचों बीच बना है। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Foundation is a very important thing. नींव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है Because किसी व्यक्ति के test लिए। of time is going to come on everyone. क्योंकि हर एक मनुष्य के ऊपर में परीक्षा का भयंकर समय आएगा। Because both the houses, क्योंकि दोनों लोगों का घर, the one on the rock, एक जो चट्टान पे घर बनाया, the one on the sand, दूसरा जो रेत पे बनाया, both
going to experience storm. दोनों के ऊपर भयंकर तूफान आने वाला है। Just because they built on the rock, it doesn't mean no storm will come. केवल इसीलिए कि किसी ने चट्टान पे घर बनाया है, अर्थ ये नहीं कि उस पर तूफान नहीं आए। But one thing is sure, एक बात तो तय है that house will stand. कि वो चट्टान वाला घर सहलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Our rock is Jesus Christ. हमारा चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। Amen. Amen. Jesus said, यीशु ने कहा, on this rock I will इस build my church. चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Gates of hell cannot prevail. अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं हो पाएंगे उसके ऊपर। Meaning, मतलब demons, darkness, Satan himself. दुष्टात्मा, अंधकार की ताकतें और खुद शैतान भी आ जाए, Cannot prevail प्रबल नहीं हो पाएगा against the church of Jesus Christ. यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर। Hallelujah. हालेलुया। You believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Then give the Lord a good hand. एक ताली जोरदार प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाकर बताएं। Hallelujah. हालेलुया। यस Je- लॉर्ड वी बिलीव। Jesus has promised, क्योंकि यीशु मसीह का ये वायदा है, I will build. मैं बनाऊंगा। Who's builder? कौन है बनाने वाला? Pastors? पास्टर है? No. नहीं, They are mysteries. वे सब मिस्त्री जैसे हैं, What do you call? Reja like, you know. रेजा कुली जैसे। Bring the masala. मसाला ला कर देते हैं। What is the masala? और मसाला क्या है? The word of God. परमेश्वर का पवित्र वचन। Hallelujah. Hallelujah. And then Jesus takes that और यीशु मसीह उसे उठाता and builds this house. अपने घर को बनाता जाता है। Your Jesus said, you know, यीशु ने क्या कहा आप जानते हैं? I will build my church. अपनी कलीसिया मैं बनाऊंगा। Amen. हालेलुया। Amen. हालेलुया। I will build my church. मैं बनाऊंगा अपनी कलीसिया। You know, Peter had confessed that time, आप जानते उस समय पतरस ने एक बड़ा अंगीकार किया था। you are the Christ, the Son of the living God. कहा तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है And तू। Jesus said to him, तब यीशु मसीह ने मुड़ के पतरस से कहा, flesh and blood has not revealed this to you, Peter. ये सच्चाई जो तुझ पर प्रकट हुई है वो मांस और लहू से नहीं आया है, It is the Spirit of my Father. मेरे पिता की आत्मा ने इस तथ्य को तुझ पर प्रकट किया है। Hallelujah. हालेलुया। Then he says, तब वो कहता है, you are Peter. तू तो पतरस है। Peter means a piece of rock. पतरस मतलब एक पत्थर का टुकड़ा। But on this rock, परंतु सुन, Oh, ये hallelujah. जो यीशु है, ये जो चट्टान है, इस पर amen, आमेन, ledge of rock. एक Mountainous rock. विशालकाय पहाड़ी नुमा चट्टान। You go to your Google and don't do now. अभी नहीं, घर जाके आप ढूंढें, Just type Petra rock. पेट्रा रॉक चट्टान को आप ढूंढें। Mountainous rock for miles. ऐसा पहाड़ी नुमा जो कई मीलों दूर लंबा पहाड़ी नुमा चट्टान। So Jesus was saying, जब यीशु मसीह बोल रहे थे, you are Petros, तू तो पेट्रोस है, पतरस है, छोटा पत्थर है, but I will build my church on Petra. परंतु जिसका Hallelujah. नाम तूने लिया उस पेट्रा पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. I'll build my church on myself. मैं अपनी कलीसिया अपने ऊपर बनाऊंगा Gates of hell cannot prevail. और अधोलोक के कोई फाटक भी उस पे प्रबल नहीं हो Just पाएंगे। imagine कल्पना करिए, all the demons and all satanic powers trying to attack सारी the church. दुष्ट आत्मा, अंधकार की पूरी ताकतें, शैतान मिलके कलीसिया के विरुद्ध लड़ता है। The wise man built his house. बुद्धिमान ने अपने घर को चट्टान पे बनाया। It took some time. बहुत समय उसको लग गया, He dug and dug and dug. क्योंकि गहरा खोदता गया। And the foolish man, और मूर्ख आदमी he's watching him, वो उसको खोदते देख रहा, still digging. अभी भी नीचे खोद रहा। He's walking on his terrace. अभी तो मूर्ख ने घर बना के अपने छत में टहल रहा है Nice garden has also come up. और बढ़िया बगीचा भी लगा लिया है, This man is still digging. लेकिन बगल वाला अभी भी खोद रहा है। Hey, what's happened to you, man? क्या हो गया आदमी तुझको? So I am searching for a rock. मैं चट्टान ढूंढ रहा हूँ। Hallelujah. Jesus. And when he found, और जब उसे वो चट्टान मिला, he built his house. वहां से उसने अपना घर बनाना Now शुरू both किया। houses are standing. अब दोनों घर खड़े हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, who is a wise man? बुद्धिमान कौन है? The one who listens to my words. जो मेरे कहने को मानता है। You know, people will tell you a lot of stories. लोग आपको बहुत तरह तरह की कहानी बताते हैं। They will say this is revelation from
God. कहते हैं ये परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिला है। Thank God for all that. प्रभु का धन्यवाद हो प्रकाशन के This लिए। is the final revelation. लेकिन अंतिम प्रकाशन ये पवित्र शास्त्र है। Amen. Amen. When you read this, जब आप इसे पढ़ते हैं it will guide you. वो आपकी अगुवाई करता है। Hallelujah. हालेलुया। Your word is a lamp to my feet, तेरा वचन प्रभु मेरे पांव के लिए दीपक है, light to my path. मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Your word have I hid in my heart, तेरे वचन को मैंने छुपा रखा अपने दिल that में, I might not sin against you. ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। Hallelujah. Hallelujah. So precious is this Bible. इतना बहुमूल्य पवित्र शास्त्र People है। have died for this book. इस किताब को बनाने में लोगों ने अपनी जान तक दी है। Some have struggled for months and years. कुछ लोग महीनों सालों बैठे रहे। The इसको Hindi version you have holding in your hand हिंदी का जो अनुवाद वाली बाइबल आज मैं और आप अपने हाथ में पकड़े हैं, was not translated by some Indian. कोई भारतीय मनुष्य ने इसका अनुवाद नहीं किया है। It was William Carey, विलियम कैरी ने a Britisher. एक ब्रिटिशर आदमी, He translated this Bible into 27 languages. उसने भारत की भाषाओं को सीखकर 27 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया। New Testament into 40 languages. केवल नए नियम को 40 विभिन्न भाषाओं में। You say this man had a lot of time? आप कहते होंगे इस आदमी के पास तो बहुत फुर्सत रहा होगा। His wife became mad because his son died. उसकी जो पत्नी साथ में आई थी, जवान पत्नी पागल हो गई उसके बेटे की मौत के बाद। Nobody came to bury his son. उसके बेटे की अंतिम क्रिया करने के लिए कोई नहीं आया। He dug the grave himself. वो बाप खुद अपने बेटे की कब्र खोदा। Sometimes he would come back home and his wife will be wild and all kinds of things were happening to her. कभी कभी सेवा से लौट के थक के आता था, उसकी पत्नी अजीबो गरीब हरकत करती थी मानसिक असंतुलन के कारण। Would cook his food, nurse her. वो खाना बनाता था उसके लिए भी और उसकी सेवा टहल करता था, Translate the scripture. और फिर बैठकर पवित्र शास्त्र का अनुवाद करता था। Amen. Jesus। His wife died. पत्नी की मृत्यु हो गई, He buried his wife. अपनी पत्नी को भी गड़ाया, But the vision he never lost. जो दर्शन Hallelujah। मिला था उसको खोया कभी नहीं। You know something? आप जानते कोई बात? History doesn't tell. He doesn't talk about it. Education books don't have. इतिहास की किताबें और हम जो किताब पढ़ते हैं वो सब नहीं बताती हैं। He was the first man to establish university in India. भारत में विश्वविद्यालयों की नींव रखने वाला आदमी वो था। He introduced postal system in India. पोस्टल सेवा को भी परिचय कराने वाला व्यक्ति वो था। He fought with so many social people बहुत to fight against sati. और सती प्रथा को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों से उसने दुश्मनी मोल लिया। Even the then known East India Company people. उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विदेशी लोग थे उनसे भी लड़ाई। They opposed him. उन्होंने विलियम कैरी का विरोध किया। Listen friends, सुनिए प्रिय मित्रों, when your eyes have caught the vision, जब आपकी आंख ने उस दर्शन को पकड़ लिया है, hallelujah, Hallelujah। on this rock इस चट्टान पर I will build my church, William. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा विलियम, Hallelujah. Gates of hell cannot prevail. और अधोलोक के फाटक भी उस पे प्रबल नहीं होंगे। Serampur University, सेरामपुर विश्वविद्यालय West Bengal, वेस्ट बंगाल में है, first university पहली established by William विश्वविद्यालय Carey. जो विलियम कैरी ने आरंभ किया। In your construction, आपके निर्माण में a lot of things are involved. बहुत सी बातें शामिल हैं। Who is building? कौन बना रहा है? And here he says, और यहाँ पर वो कहता है wise man built his house. बुद्धिमान मनुष्य ने अपने घर को बनाया। What type of material you are using? किस प्रकार का सामान आप इस्तेमाल करते हैं? It plays a very important role. ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाता है। Earlier buildings, I am not talking about civil engineering, a lot of engineers are sitting here. यहाँ बहुत से इंजीनियर बैठे हैं इसलिए मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। But one thing I know, एक बात मैं जानता हूँ, they will also agree. वे लोग भी शायद मेरे साथ सहमत होंगे। The ones cement was not there at that time.
जब सीमेंट का खोज नहीं हुआ था पुराने समय में, it was lime. वो चूने का इस्तेमाल करते थे And they mixed so many things we don't know what all. और बहुत सी चीज उसके साथ में वो मिलाते थे, बेल और अन्य चीजें। Hundreds of years have passed. सैकड़ों साल आज बीत गए हैं, Those buildings are still standing. वो चूने की बनी इमारत खड़ी है। Amen. आमेन। What material you're using? कौन सा सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं? Are you using the word of God? क्या परमेश्वर के कलाम से अपनी जिंदगी का निर्माण कर रहे? Or listening to here and there these tapes, and tapes are not bad, not all are good. यहां वहां टेप सुनकर, हर टेप सही नहीं, हर टेप गलत भी नहीं, परंतु किससे हम सुन रहे You हैं? don't know what to do. आप जानते नहीं क्या करना Which है, material to use? कौन सा सामग्री में अपने जीवन के निर्माण में इस्तेमाल करूं? Become a student of God's word. परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी बन जाएं। Amen. Amen. Read the Bible as much as possible. बाइबल जितना हो सके इसका अध्ययन करे, पढ़ते जाएं। Make up your mind how much you will read. आप तय कर लें, अब मैं इतना रोज पढ़ूंगा, We will finish the New Testament. नए नियम को इतने समय में खत्म करूंगा। If not, you start today. यदि नहीं किए हैं, आज से शुरू करिए। Tell in so and so time, by December I'll finish it. तय करिए इतने समय तक मैं नए नियम को पूरा पढ़ के समाप्त करूंगा। And when you do that, जब आप ऐसा करेंगे, when you do that deliberately, जब आप मन बांध कर तैयारी से करेंगे, new revelation will come. आपको नया वचन से प्रकाशन मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। There are different foundations. अलग अलग नींव वहां है, But our foundation is spiritual. परंतु हमारी नींव आत्मिक है। If the foundation is strong, यदि नींव ठोस मजबूत है, the building will last. इमारत लंबे समय खड़ी रहेगी। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। One song says, एक गीत कहता है, my hope is built on nothing less. मेरी आशा किसी ऐसी वैसी चीजों के ऊपर नहीं, Jesus' blood and है। righteousness. यीशु मसीह के खून और उसकी धार्मिकता में टिकी है। I dare not trust the sweetest frame, खूबसूरत दिखने वाली चीजों पर भी मैं भरोसा नहीं करूंगा, but wholly lean on Jesus' name. संपूर्ण तौर से निर्भर करूंगा उसके नाम And पर। the chorus says, और गीत का कोरस बोलता है, on Christ the solid rock I stand. यीशु मसीह जो युगों की चट्टान है, उस पे मैं खड़ा हूं, All other ground बाकी सारी जमीन is sinking sand. वो डूबने वाली, धसकने वाली दलदल है। Where are you standing? आप आज कहां खड़े How are हैं? you building? कैसे बना रहे हैं? Amen. आमेन। Don't build with any material. किसी भी पदार्थ से ना बनाएं। Young people, जवान लड़कों, amen, and Amen. young boys and girls, जवान लड़के और लड़कियां, listen, सुनिए, don't make a big mistake by marrying an unbeliever. किसी भी अविश्वासी से विवाह करने की ऐसा गलती ना करें, Because you're building a home, not a house. क्योंकि आप वहां पर एक घराना बना रहे हैं, एक इमारत नहीं। Be not unequally yoked together with unbelievers. असमान जुए में अविश्वासियों के साथ ना जुटो। Oh, लिखा but है। that person is better than the believer. नहीं, लेकिन वो व्यक्ति तो ये विश्वासी लोगों से भी बहुत अच्छा है। Yes, see the kingdoms of the world. संसार के राज्यों को देखो, All this I give to you. ये सब यीशु मैं तुझको दे दूंगा, शैतान ने You कहा। just fall and worship. बस केवल मेरे सामने दंडवत कर See दे। little compromise. थोड़ा सा समझौता, Little compromise will ruin your life. थोड़ा सा समझौता आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Will you say like this? क्या आप उसके बदले ऐसा बोलेंगे? Lord, not my will. प्रभु मेरी मर्जी नहीं, Your will be done. तेरी मर्जी पूरी हो। You have won. तू जीता है। Hallelujah. हालेलुया। The day you say that, जिस दिन आप ऐसा बोलेंगे, not my will, मेरी मर्जी नहीं प्रभु, your will be done. तेरी मर्जी पूरी हो। You know, the first part of the battle was won in the garden. आप जानते, जो युद्ध का पहला भाग एक बगीचे में जीता गया था। Amen. आमेन। When Jesus said, जब यीशु ने ये कहा, not my will, हे पिता मेरी इच्छा नहीं, your will be done, तेरी इच्छा पूरी हो, then God will make a way. तब परमेश्वर एक नया रास्ता आपके लिए बनाता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया।
You and I block his way by our own wills. आप और मैं अपनी मर्जी को सामने रख के रास्ता बंद करते। Strong foundation. मजबूत नींव। Two things are needed. दो चीजें जरूरी है। Word of God परमेश्वर का वचन चाहिए and prayer. और प्रार्थना चाहिए। Not just church prayer. केवल चर्च में होने वाली प्रार्थना नहीं, Alone with God. परमेश्वर के साथ बिल्कुल आप अकेले। Amen. Alone with God. अकेले परमेश्वर के साथ। We are going to start कहाँ से शुरू करें? 5:30 prayer in the morning here. सुबह 5:30 बजे यहाँ से प्रार्थना। Come as many as you can. आप में से जितने आ सकते हैं इस जगह में 5:30 बजे आए। Why we made 5:30? Because by the time you leave your house, it will be 5. क्योंकि 5:30 हम इसलिए कह रहे क्योंकि घर से निकलते तक 5 आपको बच सकते हैं। Something will happen. जब आप प्रार्थना करेंगे कुछ होगा। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So many things God wants to do. It doesn't happen because we don't pray. बहुत सी चीजें परमेश्वर करना चाहता है और नहीं हो रहा इसलिए क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। Our foundation must be the word of God. हमारी नींव परमेश्वर का वचन होना चाहिए। Amen. मैन Suppose I come tomorrow and tell you I had a dream that all of you should come white clothes and मान लीजिए मैं कल आपसे so all आकर of you must wear it. Suppose I say like that. ऐसे मान लीजिए कि मुझे एक सपना आया है कि आप सभी लोगों को फलाने Then दिन God told me you wear white. परमेश्वर ने मुझसे कहा तुम सफेद कपड़ा पहनो। Now this is not happened, just I'm saying like this. मैं उदाहरण दे रहा, ऐसा मुझे सपना कुछ नहीं आया। That's why I'm wearing blue. So इसलिए sometimes God might check me personally, so I should not put it on everybody. परमेश्वर मुझे कोई चीज व्यक्तिगत तौर से मुझे जांचता है, वो बात मुझे सबके ऊपर नहीं डालनी So चाहिए। maybe I am proud of certain things. God said, no, you dress up like this. संभव है परमेश्वर को मालूम है कि मुझे किसी एक चीज को लेकर बड़ा घमंड है, प्रभु शायद मुझे उस कारण से कुछ बोलता है। What I do, I make this a doctrine. और मैं क्या गलती करूंगा, मैं आऊंगा और मैं बोलूंगा ये सिद्धांत बना देते हमारी कलीसिया का। All of you must do like this. चर्च के सब लोग को ऐसा ही सफेद पहनना है। See, देखिए, then you know the word, जब आप वचन को जानते होंगे you will not believe it. आप ऐसे वचन पर विश्वास नहीं करेंगे। Amen. आमेन। Even if an angel comes and tells you something which is not in the Bible, चाहे स्वर्गदूत भी आकर कोई ऐसी बात कहे जो बाइबल के अंदर नहीं है, don't believe it. उस स्वर्गदूत पर भी विश्वास नहीं करना, Because Bible says, क्योंकि बाइबल बोलती है Satan can come as an angel of light. शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके Bang आता है। shines in the house. ओ धमाका हुआ, जोरदार चमक। You say, आप बोलते this is light. ये तो रोशनी है। Remember one thing. एक बात याद रखें, He might show light, but he is darkness. वो रोशनी आपको दिखा रहा है किंतु वो खुद अंधकार है। You will know how to know him. आप कैसे उसको पहचान पाएंगे? You have a monitor. आपके अंदर पहचान करने वाली एक चीज है, The Spirit of God. परमेश्वर की पवित्र Spirit आत्मा। of God and Spirit of Satan will not coincide. परमेश्वर की पवित्र आत्मा और शैतान की आत्मा आपस में मेल नहीं खाती। Amen. आमेन। You will know what is wrong. और आपको पता चल जाएगा ये गलत है। So unless you read the word, how will you build? किंतु जब तक आप वचन को पढ़ेंगे नहीं, हम कैसे अपने जीवन को निर्माण? He who hears my saying जो मेरी बातों को सुनता है and does it. और वैसा ही करता है। So his sayings are here in the Bible. बाइबल में यीशु ने क्या कही वो सब है। Ephesians 2nd chapter, इफिसियों और उसका दूसरा अध्याय verse 20. और उसकी 20 आयत। Epistle of Paul to the Ephesians. पौलुस प्रेरित का पत्री है इफिसियों के नाम, इफिसुस में रहने वाले लोगों के नाम। Maybe we read from verse 19, so we'll understand more. 19 से पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे। Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए।
Amen. Amen. Then he says, फिर कहता, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, In whom also ye are builded together for an habitation of God through the Spirit. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. You see, he's talking about a building. देखिए यहाँ पर वो बात कर रहा है एक इमारत की. So when, yeah, आमेन. Amen. You see, when Paul talks about the church, he gives a lot of symbols. जब पौल उस चर्च की बात जब भी करता है तो उसको कोई ना कोई चित्रण करके बताता है. Talks of a building, इमारत का उदाहरण लेके कलीसिया को समझाता, talks of the body, शरीर को लेकर कलीसिया को समझाता. one body with a lot of members, जैसे शरीर में ढेर सारे अंग हैं, a building with a lot of bricks, जैसे stones. इमारत में बहुत सी ईंटें रद्दा रखा गया है, So is the church. वैसे ही चर्च है, कलीसिया है. It talks of the church as a flock of God, और कहीं पर कलीसिया को परमेश्वर की भेड़ों का झुंड बोला गया है, household of God, परमेश्वर का घराना परिवार बोला गया है, family of God. परमेश्वर का परिवार कहा गया है. Amen. Amen. Bride of Christ. मसीह की दुल्हन कहा गया है, Lot of other things. अलग अलग चित्रण करके. But now here he's aiming on showing them the church is like a building with foundation. परंतु यहाँ पर वो कलीसिया की तुलना की इमारत जिसकी नींव है उससे करता है. What is the foundation here? यहाँ पर नींव क्या है? They used to have a chief cornerstone. पहले समय में एक मुख्य कोने का पत्थर हुआ करता था. So that held the whole building. वो कोने का जो पत्थर था वही संभालता था पूरी इमारत का. And the rest of the stones will come around and around that thing. और बाकी जो पत्थर थे वो उसके चारों तरफ हुआ करते थे. Now we think Kona Patthar means right in the back. हमको लगता कोना मतलब पीछे का कोना. No. नहीं. It would mean a center one with a lot of diversions here and there. वो एक ऐसे केंद्रित जगह में कोने में है जहां के चारों तरफ से का वजन वो ले लेता है. So then he's saying, फिर वो कहता, apostles' doctrine प्रेरितों की शिक्षा and prophets. और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर. Listen, सुनिए, when the church began, जब कलीसिया की शुरुआत हुई 4 things they did. वहां पर उन नए विश्वासियों ने 4 काम किया. They continued steadfastly वो निरंतर आपस में मिलना बंद नहीं किए, मिलते रहे. in apostles' doctrine, प्रेरितों की शिक्षा में, prayer, प्रार्थना में एक Fellowship, साथ, संगति में एक साथ, breaking of bread. और रोटी तोड़ने में एक साथ. When Jesus rose from the dead, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, the disciples did not believe. चेलों ने को विश्वास एकाएक नहीं हुआ. He could have said to those men walking towards Emmaus, इमाउस गांव की तरफ जाने वाले उन दोनों चेलों को यीशु मसीह बोल सकता था, listen, don't you believe? See my hand. अरे तुम लोग को विश्वास यदि नहीं हो रहा है, ये देखो मेरा हाथ. No. नहीं. What did he do? यीशु ने क्या किया? He opened scripture. उसने उनको पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो बताने लगा. He opened the prophets. भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु की मृत्यु के बारे में जो कहा वो बताया. He opened the book of Moses. 5 मूसा की books. किताब जो 5 किताब है उसमें से उन दोनों चेलों को बताया. He opened Psalms. भजन संहिता में यीशु के बारे में क्या लिखा यीशु ने बताया. When he talked with them, जब वो उनसे ऐसे वचन से बातें कर रहा they were था, feeling good. उनको सुनकर अच्छा लगने So लगा. they said, hey stranger, उन्होंने कहा, हे अजनबी this आदमी, sun is going down. सूर्य ढल रहा है, Come stay with us. क्यों ना तू आज शाम हमारे साथ रुक जा. You know the miracle. आपको मालूम है चमत्कार क्या Jesus हुआ. broke bread, vanished. यीशु मसीह उनके साथ बैठा, खाने को रोटी तोड़ा और उछल हो गया. And they said, और तब इन दोनों अकेले बच्चे लोगों ने कहा, did not our hearts burn within us? हमारे अंदर क्या Hallelujah. उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई. Hallelujah. Hallelujah. When he spake the word, जब वो वचन से हमें दिखा रहा when था, word comes, it brings life. जब वचन आता है जीवन लाता है. Jesus said, the words I speak to you, यीशु ने कहा जो वचन मैं तुमसे कहता they are हूँ spirit, वो वचन क्या है? आत्मा है. they are life. वो वचन
जीवन है। Hallelujah. Hallelujah. So when you speak, जब आप इस वचन को बोलते, healing will come. चंगाई वहां बीमार के ऊपर आती है। When you speak, जब आप इस वचन को बोलते हैं, demons will go. दुष्टात्मा भागती है। Hallelujah. Hallelujah. It's not you. वो आप नहीं, It's the word. परमेश्वर का वचन करता है। Hallelujah. Hallelujah. The word which has gone out of वो my mouth वचन जो उसके मुंह से निकला है, will not return void. वो कभी खाली नहीं लौटेगा। It will do its job. वो अपने काम को पूरा संपूर्ण करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। It will do its job. वो अपने काम को बखूबी करेगा। The church must be built on the word. कलीसिया को बनना है उस वचन में। Amen. आमेन। Miracles are good, चमत्कार हो रहे हैं, अच्छी बात है, but that's not our foundation. परंतु हमारी नींव चमत्कार नहीं है। It's the word of God. नींव परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुनिए, Jesus Christ is our main foundation. यीशु मसीह हमारी मुख्य नींव है। 1 Corinthians 3rd chapter, 1 कुरिन्थियों 3रा अध्याय 11th verse says, 3:11 कहता है, For other foundation can no man lay, that which is laid, which is Christ Jesus. क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। Amen. आमीन। Don't build your house on a sandy land. अपने घर को रेतीले किनारे में मत बनाओ, Don't build it too near the shore. और बहुत ज्यादा समुद्र के किनारे ना बनाओ। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, the rock वो जो चट्टान है is Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह है। Amen. आमीन। Other foundation can no man lay. दूसरा नींव कोई भी नहीं डाल सकता। What is already laid जो पहले ही डाल दी गई है is Jesus वो Christ. यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Nothing but Jesus and Jesus alone. यीशु के छोड़ और कोई नहीं, केवल यीशु। Also he says, और भी कहता है, every man, 10th verse, 10वीं आयत में कहता है, but let every man take heed how he buildeth thereon. परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। Paul says, पौलुस कहता, according to the grace which is given unto me as a wise master builder, I laid the foundation, another man builds thereon. But I let every man take heed how he builds. परमेश्वर की उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। Amen. बुद्धिमान राजमिस्त्री. बुद्धिमान राजमिस्त्री। All the mistries they come, हाँ हो जाएगा. मिस्त्री लोग आते हैं और दावा करते हैं हो जाएगा। One fellow came, एक जन आया, कुछ भी दे दो सब कर लेता हूँ. कुछ भी काम दे दो सब कर लेता हूं। First shot, पहले ही कदम में instead of the ढलान going outside, it is coming inside the house. ढलान बाहर जाने के बजाय ढलान अंदर की तरफ है। So what has happened? क्या हुआ? वाटर मार्किंग किया था. वाटर मार्किंग तो किया था। I said, with the eyes I can see the slope is this side. मैंने कहा मुझे ऐसी आंख से दिख रहा है, इधर ढाल इस तरफ कर दिए तुमने। So you will get lot of mistries, but not that master mistry. बहुत से मिस्त्री है, राजमिस्त्री नहीं है सब। And they will say like this, और वो ऐसा बोलते, अरे ये टेढ़ा हो गया. अरे टेढ़ा हो गया। अरे हम तो है ना. हम तो है, You are eternal God. अनंत काल के लिए मिस्त्री हो। जब घर गिर जाएगा हम तो हैं. घर तुम गिर हो, जाएगा हम तो हैं। तुम हो वो हम नहीं है. Because you made it like that. क्योंकि तुमने घर को ही इतना गलत बनाया। हम हैं. हम This हैं। is the famous saying.
और ऐसा ये लोग दावा करते हैं। Famous saying of Mistri. बहुत मिस्त्रियों का एक बहुत ही लोकप्रिय The, शब्द है। the fellow who made this one also, इसको भी जिसने बनाया था, I looked, I said, see the slope is towards the building. मैंने कहा देखो इसकी ढाल जो इमारत की तरफ मुझे यहाँ दिख रही है। About another, बहुत अनुभव है। first you take out that thing, first then talk. पहले मुंह से वो निकाले तो कुछ समझ में आए। And ये देखो water ये pipe. देखो वाटर लेवल देखो। वाटर लेवल ठीक है, जब वाटर आता ना तो इधर ही अंदर आता है. वाटर जब आता है बारिश का तो इसी तरफ आके रुक जाता है। मिस्त्री, मिस्त्री, Paul is saying, पौलुस कह I am रहा, a wise master builder. मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Some people's name is on their ministry. कुछ लोगों का नाम उनकी सेवकाई में है। The foundation नींव is on their ministry. उनकी सेवकाई पर है। So many likes, so many dislikes. No इतने- dislike. Everybody likes. इतने लाइक्स उसको मिलते And on the picture, और उनका चित्र वहां सामने, everybody appreciating. सब लोग तारीफ करते हुए लिखते हैं, Arey, where is the word of God? परमेश्वर का वचन कहाँ है? Amen. Amen. Point to the word of God. परमेश्वर के वचन की तरफ लोगों को ले जाओ। Point to Jesus Christ. यीशु को दिखाओ। Amen. Amen. Not your thinking. अपनी सोच विचार नहीं। Like one fellow said, एक आदमी ने ऐसा बोला, are you all ready to listen? आप लोग तैयार हो सुनने के लिए? I'm going to tell you so deep things. मैं इतनी गहरी बात आज बोलने वाला हूँ, It will not go inside your mind. वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। So we better leave then. If it's not going to go in our mind, we better leave the church. यदि दिमाग में नहीं आएगा तो घर चलते हैं। ऐसा बात बताऊंगा कि ऊपर से निकल जाएगा. ऐसा बात बताता हूँ सिर के ऊपर से निकल जाएगा। इतना गहरा और इतना ऊपर. इतना गहरा और इतना ऊंचा। Jesus talked simple things. यीशु मसीह जब बोलता था सरल भाषा में बोलता। Look at the birds of the air. आकाश के पक्षियों, Look at the grass. जमीन के घास। Wise man built his house on the rock. बुद्धिमान आदमी ने चट्टान में घर बनाया। Amen. Amen. Don't build on foolish things. मूर्खताओं पे घर नहीं Foolish बनती। talk. मूर्खता की बातों पे नहीं बनता। Amen. Amen. Listen, friends. सुनिए दोस्तों, God has given us a right foundation. परमेश्वर ने हमको बेहतरीन नींव दिया है। Amen. आमेन। Like a wise master builder. एक बुद्धिमान राज्य मिस्त्री के समान। Winston Churchill was Prime Minister of England. विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। And he used to wear hat and coat, वो अपने हैट pipe in his mouth. और कोट को पहन के निकलते थे। One day he was roaming. एक दिन जो टहलते जा रहे थे, He is seeing one mason putting bricks. उन्होंने देखा एक मिस्त्री ईटा रद्दा जोड़ रहा है। So he stood there and he says, yeah, no, that's not the way. उन्होंने वहां पे रुक कर देखा और बोला नहीं, ये तरीका नहीं होता He है। says, what do you know about this? तो उस मिस्त्री ने पूछा आपको क्या मालूम है इसके बारे So में? he took out his coat, उन्होंने अपना कोट उतार के किनारे रखा, took out his hat. हैट भी उतार दिया, Within no time he laid so many bricks. और थोड़े ही समय में ढेरों ईंटे रद्दे पे रद्दा जमा दिया। He knew how to do it. उनको क्योंकि मालूम था वो काम। Amen. आमेन। Who is building a house? कौन हमारे घर का निर्माण कर रहा है? दीवार बाहर की तरफ जा रही है. दीवार क्या बाहर की तरफ जा रही है? Take the column like this. कॉलम ऐसा ले जाते, उससे मेल नहीं खा रहा है. उससे यदि सामने वाले से मेल नहीं खा रहा, बेंड कर दो रॉड, थोड़ा सा सीधा कर दो. छड़ को मोड़ के सीधा निकाल दो। You know these fellows, you know this who is doing engineering. भाई लोग जो काम करते हैं इनको मालूम कुछ है। नहीं, थोड़ा मोड़ो मोड़ो, सीधा कर दो उसको. लाइन में कर रहा है ऐसा. और लाइन सीधा It's कर not दी, bearing the load. वो वजन नहीं ढोता है। Amen. Amen. That's not wise mistri. ये बुद्धिमान राजमिस्त्री का काम नहीं होता। He will break it and make it again. वो उसे फिर से तोड़ेगा, फिर से बनाएगा। Amen. आमेन। Listen. सुनिए, Wrong foundation. गलत नींव। 1 Corinthians 3rd chapter. 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 12th verse onwards. 12 आयत के आगे। So when we are reading this, जब हम इसे पढ़ रहे हैं, every time the word work comes, हर you can बार underline and see. जब काम शब्द वहां पर आए उसे आप अंडरलाइन करके रखना। If any man built upon this foundation, यदि कोई इस नींव पर gold, silver, precious stones, wood, hay and stubble, सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, every man's work shall be made manifest, तो हर एक का
काम प्रकट हो जाएगा। For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, what sort it is. इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा कि वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। If any man's work which he had built up thereupon, he shall receive a reward if it remains. जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। But if any man's work shall be burnt, he Yet- shall suffer loss, but he himself shall be saved, so by fire. यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। Now what is he talking? क्या कह रहा है ये? He's saying if any man built upon this foundation, that is gold and silver, कहता है precious यदि stones and wood, कोई सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काट घास फूस की नींव बनाए, उस पर रद्दा रखे। trying to understand this, so I don't know what exactly it is. इसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या है। Some people will have ministry upon gold. कुछ लोगों की सेवकाई सोने का रद्दा रख रहे हैं, Meaning, मतलब they have riches, संभव है उनके पास बहुत धन है, they can buy pastors, वो पास्टरों को खरीद लेते हैं, ministers of God are sold. प्रभु के सेवक गण को वो बेच देते हैं। Be a man. आदमी बने। Amen. मैन Stand firm to your own convictions. अपने मन के सच्चाई के साथ खड़े रहें। Don't get sold by money. धन किस तरफ है देख के ना मुड़े। Amen. आमेन। अरे whatever wrong doctrine it might be, पैसा तो मिल रहा है ना. चाहे गलत शिक्षा होगी लेकिन पैसा तो मिल रहा है। It looks good. दिखता अच्छा है सोना, Silver, चांदी, precious stones. बहुमूल्य पत्थर। Oh, it's so dazzling. ओ इतना चमकता हुआ पत्थर है। Listen, सुनिए, final day, अंत के दिन में fire will try this. आग उसको परखेगा। Sometimes we tremble when we think of this. कभी कभी हम कांप उठते हैं जब हम इस चीज को सोचते हैं। All what we are doing, fire is going to try. हर काम जो हम कर रहे हैं उस हर काम को आग परखेगा। Especially for the ministers of God. खास करके प्रभु के सेवा में जो लोग हैं। What on which part you are building the church? किस चीज से आप प्रभु की कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं? Your own self अपने स्वयं पे बना रहे, or on money? धन पे बना रहे? On that day, उस दिन fire will try. आग के द्वारा परखा जाएगा। Amen. If any man's work abides, यदि किसी का काम बना रहे, he will receive a reward. वो अपने प्रतिफल को पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And one thing is there. और एक बात वहां है, If it is built on the word, यदि वो घर परमेश्वर के वचन में बना है fire cannot burn this. तो आग भी इसे नहीं जलाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Fire cannot burn the word. आग वचन को नहीं जलाएगी। Amen. आमेन। That work will remain. उसका काम बना रहेगा। If you are working for position, यदि आप सेवा कर रहे हैं किसी पद के लिए, or if you are working for somebody यदि आप काम कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए instead of God, परमेश्वर को छोड़कर, is going to be burnt. ये सब काम जल जाएंगे। Listen, सुनिए, God never takes second place. परमेश्वर कभी भी नंबर 2 की जगह नहीं लेता है। Either he'll be Lord of all या तो फिर वो सब बातों में प्रभु होगा or not Lord at all. या फिर प्रभु होगा ही नहीं। Very harsh words. बहुत ही भारी वचन है। What kind of foundation is it? ये कैसी नींव है? Gold, silver. सोना चांदी का रद्दा रख रहे हैं। Paul writing to Timothy, पौलुस तिमुथियुस को लिखते बोलता है, 2 Timothy 2nd chapter, दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय 19th verse. 19 आयत। He is writing his last letter.
पौलुस अपनी आखिरी जिंदगी की आखिरी पत्रियों को लिख रहा है And he's wanting Timothy's faith to be on the word of God. और वो चाहता था कि तिमुथियुस उस जवान का विश्वास प्रभु के वचन पर रहे, Have the right foundation. सही नींव पे बनी रहे। It says like this. यहाँ ऐसा लिखा है, Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हैं? Amen. आमेन। What a word. क्या वचन है? He's telling Timothy, listen, वो कहता तिमुथियुस सुन ले, foundation of God परमेश्वर की पक्की नींव is always sure. वो पक्की है, बनी रहती है। You see, he was perturbed with people who are around him. तिमुथियुस अपने चारों तरफ के उन लोगों को देखकर विचलित हो रहा था। Some had wrong doctrines. कुछ ऐसे भी लोग उठ खड़े हुए थे जिनकी शिक्षाएं गलत थी। Some looked down upon him. कुछ ऐसे भी लोग थे जो तिमुथियुस को छोटा समझते थे, नया चेला समझते। You're too young. तू बहुत छोटा है। What are you telling teachers? तू क्या हम लोगों को सिखाता है? Paul says, पौलुस उसी लड़के को लिखता है, the Lord knoweth them that are his. प्रभु अपनों को पहचानता है। Hallelujah. Amen. The Lord knows who is his. प्रभु अपनों को पहचानता है And he who wants to name the name of Christ, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है let him depart from iniquity. वो अधर्म से बचा रहे। Depart from those who walk in iniquity. उनसे दूर हो जाओ जो अधर्म की चाल चलते। Depart from those who walk evil. उनसे दूर हो जाओ जो बुरी काम करते। It's not my words. मेरा शब्द नहीं This is है, the word of God. परमेश्वर का वचन है। He who names the name of Christ, जो कोई प्रभु का नाम लेता है let him depart. वो अधर्म से बचा रहे, Amen. अलग हो जाए। Amen. आमेन। This is the warning. ये चेतावनी है। What kind of foundation? कैसी नींव? Abraham was called of God. अब्राहम परमेश्वर का आदमी कहा गया। You come out, Abraham, and I'll give you a promised land. अब्राहम को बुलाया और कहा तू मेरे संग चल, मैं तुझे प्रतिज्ञा का देश दूंगा। He reached the promised land. वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गया, Still lived in tents. किंतु तो भी कपड़े के तंबुओं में रहता था। His servants might have come and said to him, उसके नौकर चाकर आकर बोलते होंगे, at last we have arrived. आखिरकार इतने साल बाद हम यहाँ पहुंच गए। God has given you, man. परमेश्वर ने दिया है मालिक तुझको, Build a city. अब एक काम कर, एक शहर यहाँ हम बनाते This is हैं। my ये imagination. मेरी कल्पना है, बाइबल में नहीं लिखा है। We are there to help you out. हम यहाँ पर तेरी मदद करने के लिए हैं। And we'll name that city, City of Abraham. नगर का नाम रखेंगे अब्राहम का नगर। Abraham had seen Sodom and Gomorrah destroyed. अब्राहम ने अपनी आंखों के सामने उस दो बड़े शहर सुदोम गुमोरा को बर्बाद होते देखा था। With Sodom and Gomorrah, 5 cities had ruined in fire. उसके साथ 5 नगर आग से भस्म हो गए। He might have walked through the ruins of Sodom and Gomorrah. जाकर उसकी राख के ऊपर खंडहर पे चला होगा। Then he said to his servants, फिर अपने नौकरों को बोलता, I'm seeking for a city मैं तो एक ऐसे नगर को ढूंढ रहा हूं which has foundation, जिसकी नींव ठोस हो, whose maker and builder is God. जिसका बनाने वाला और रचने वाला वो है। Hallelujah. Hallelujah. जीसस। He sought for a city उसने ऐसे नगर को आंख उस पर लगी थी, which has foundation, ऐसी नगर जिसकी कुछ ठोस नींव हो, whose maker and builder is God. जिस नगर का बनाने वाला परमेश्वर हो। That you read in Hebrews 10 and 11 and 10. ये आप पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब में 11 and 10.
और उसका 11 का 10। He is searching for a city with foundation. क्योंकि वो तो एक ऐसे नगर की बाट जो होता है, What he saw in faith. जो नगर उसने अपनी विश्वास की आंखों से देखा। Listen, I'll close. सुनिए, मैं बंद कर रहा हूं। What he saw in faith, जो नगर उसने अपनी विश्वास की आंख से देखा था, John reveals it in Revelation. उस नगर का वर्णन यूहन्ना बाइबल की आखिरी किताब में करता है। I saw the New Jerusalem descending. मैंने नए यरूशलेम उस नगर को उतरते हुए देखा, And the walls of the city had 12 foundations. और उस नगर की 12 नींव थी, And all manner of, and the names of the 12 apostles of the Lamb was written. और मेमने के और उन 12 प्रेरितों का नाम उस पर दर्ज था। That is the city I am seeking. वही तो नगर है जिसकी बाट जो रहा हूं। This world will go away one day, ये दुनिया तो सब खत्म हो जाएगी एक दिन, but listen, परंतु सुनिए, Jesus is coming back. यीशु बहुत जल्द आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। He said, let not your heart be troubled. उसने हमको कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना In हो। my Father's house are many mansions. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। If I go, I will come again. यदि मैं जा रहा हूं तो फिर लौट के आऊंगा। I will receive you to myself. मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, That where I am, there you may be also. ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। And that city had 12 foundations. और उस नगर की 12 नींव थी, Jasper और precious stones, बहुमूल्य मणियों से और पत्थरों से, diamonds. हीरो से जड़ा हुआ। Oh, what a place. क्या शानदार जगह है। Eye has not seen, neither ear heard. ऐसी चीज जिसे मनुष्य की आंखों ने देखा नहीं, ना आज तक इन कानों ने सुना। God is prepared for them that love Him. परमेश्वर अपने से प्रेम करने वालों के लिए ऐसा बनाया है। Amen. आमेन। Build on the right foundation. सही नींव पर घर का निर्माण करें। Don't build it on the sand. रेत के ऊपर घर ना बनाएं। I challenge you today. आज के दिन में आपको के सामने एक चुनौती रख रहा हूं। Read this New Testament in a month's time. एक महीने के अंदर इस नए नियम को पूरा पढ़ने का आप तैयारी कर लें। Amen. आमेन। It is not difficult. बहुत कठिन, ये कठिन बिल्कुल नहीं है। 3-4 chapters a day, finish it. रोज केवल 3-4 अध्याय पढ़ेंगे। Sometimes you could read the whole epistle one sitting. कभी कभी तो एक पूरी की पूरी पत्री ही आप एक ही बार बैठ के पढ़ डालेंगे। You will be surprised. आपको आश्चर्य होगा, Your spirit will go strong. आपका आत्मा बलवंत होगा। Hallelujah. Amen. आमेन। When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to save, He will save. When the Lord begins to save, He will save. When the Lord
the Lord begins to heal, He will heal you. जब परमेश्वर चंगा करने लग जाए वो चंगा करेगा. And when the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. How many of us are believing God for a move in this place? हम में से कितने लोग इस स्थान पे परमेश्वर की Amen. आत्मा की बेदारी This city, this विश्वास land. कर रहे हैं. ये जगह, ये नगर. Amen. आमेन. Thank the Lord for all your prayers प्रभु का For us. धन्यवाद देते हमारे लिए जो आप प्रार्थनाएं करते हैं and also for helping us. और हमारी जो Financially. सहायता करते हैं उसके लिए भी. God bless you. परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे. We take the offering now, इस समय हम अपने भेंट को एकत्रित कर सकेंगे. and wherever you are, आप जहां पर भी है, if you are not joining in the church, you can put it in a box at home. यदि आप चर्च में अभी नहीं शामिल हुए हैं तो आप किसी स्थान में उसे धन को इकट्ठा कर सकते हैं. Thank God the church is opened. प्रभु का धन्यवाद हो, चर्च खुल चुके हैं We are having different timings for the services. और सभाएं अलग अलग समय में लगाई जा रही है. Praying that all the restrictions will be lifted up so that we can have a normal service. ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाए ताकि सभाएं भी सामान्य जैसे चलती थी वैसे फिर से हो सके. Amen. Yes. We sing chorus and you take the offering. एक कोरस को हम गा लेंगे इस समय. I'm gonna be like Him. I'm gonna be like Him. I don't care what the world may say, but I'm gonna be like Him. I'm gonna be like Him. I'm gonna be like Him. I don't care what the world may say, but I'm gonna be like Him. Father, we pray a blessing on this offering. पिता तेरी आशीष इस भेंट के ऊपर में मांगते हैं. Those who gave, bless them. Those who could not give, bless them too. जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे, जो देने में असमर्थ है उन्हें भी आशीष देना. Return them 1,000-fold, I pray. ओ तो अपने लोगों को 1000 गुना लौटा कर देना Let they may not lack anything in their life. ताकि उनके जिंदगी में किसी भी बात की कमी ना आने पाए. Bless them, O God. उन्हें आशीष देना प्रभु. Bless the offering too. भेंट के ऊपर अपनी बरकत दे. In Jesus' name. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं. Amen. आमीन. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and until Jesus comes back again. आमीन. God bless you all. प्रभु आशीष दे.